Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Congress General Secretary K.C. Venugopal and Congress State in charge Ghulam Ahmad Mir were seen trying their hands at playing a traditional dole upon their arrival at Ranchi Airport. This lively display added a festive touch to their visit, showcasing the party's connection to local culture. मीटिंग के बाद करें, चुनाव को लेकर क्या करें, मीटिंग के बाद हम बोलेंगे। अच्छा वातावरण है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। गठबंधन का सरकार है। इधर अच्छा वातावरण है, चुनाव का परिस्थिति देखने के लिए आ गया। बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमारा सरकार बनेगी, फिर बनाएंगे। अच्छा लेवल काम करना सरकार है इधर, जेएमएम कांग्रेस सरकार लोगों के साथ पसंद है, बिल्कुल हम फिर भी जीतेंगे। National Conference President Farooq Abdullah expressed condolences on the death of BJP MLA Devendra Singh Rana, describing him as a wise man with whom they had maintained good relations even after he left the National Conference in 2021. Abdullah emphasized that they had never spoken ill of him and acknowledged the inevitability of death. He extended prayers for strength to Rana's family during this difficult time, highlighting the long-standing connection between their families and offering support in their grief. हमारे साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर 2021 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। मगर हम लोगों ने कभी भी कोई अल्फाज इसके खिलाफ नहीं कहे, क्योंकि हमारे साथ था, हमारे साथ उठा बैठा, हमारी जमात को मजबूत किया, इतना कर सकता था। मगर फिर मौत जो है वो अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है। जो आया है उसने जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसके गुनाहों को अफू करेगा और इसके खानदान को हिम्मत देगा कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। बहुत छोटा खानदान है, बच्ची अभी शादी भी नहीं हुई है, बेटा अभी 1 साल पहले विलायत पढ़ने गया था, तो काफ़ी इनकी बेगम के ऊपर भी काफ़ी अब जिम्मेवारियां हैं। अल्लाह करे कि वो ये बोझ उठा सके। हमारी तो यही थी कि हम उस ख़ानदान के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, मेरे वालिद के वक्त से। इनके अब्बा जो थे वो बड़े इंजीनियर थे और वफादार थे इस रियासत के भी और शेर कश्मीर के भी। मैं यही कहूँगा कि हम लोग इस सानिया में उनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके ख़ानदान को सलामत रखे।
और जो मुश्किलें आएंगी उनको आसान करे। ये बहुत ही नेक आदमी। Communist Party of India leader D. Raja expressed its strong opposition to the One Nation, One Election initiative, labeling it as a current agenda of Prime Minister Modi. He stated that there is a significant public dissent against this proposal, as many believe it threatens to undermine India's multi-party democratic system and the existing power structure. Raja warned that in the name of constitutional reforms, the initiative poses a serious threat to the unity of the country. It's the current agenda for the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, nothing else. What is this one nation, one election? There is a strong public opinion against one nation, one election, because there is a perception this one nation, one election will destroy the parliamentary democratic system, multi-party democratic system in the country. It will destroy the federal system of governance in our country. It will destroy the present power structure. After all, India is union of states, and states have their powers. Union government has its powers, and one nation, one election will lead to dictatorship, and it will destroy the foundational principles of the constitution, which is meant for parliamentary democratic system. This is Union Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized the celebration of Deepotsav, which marks the return of Lord Rama from exile. Alongside the entire nation and the world, he extended his best wishes to everyone, hoping that the blessings of Ma Lakshmi and Ma Saraswati would be a permanent presence for all Indians and the people of Rajasthan. दीपावली के इस पावन पर्व पर जब कल हमने भगवान राम के अपने वनवास को समाप्त कर वापस आने की स्मृति में असत्य पर सत्य के विजय के उस उपलक्ष्य में पूरे देश और दुनिया के साथ में दीपोत्सव को मनाया। सभी देशवासियों ने लक्ष्मी पूजन किया। मैं सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ। ये दीपावली हम सब लोगों के जीवन में एक नए प्रकाश को उदित करें। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से सभी भारतीयों पर, सभी राजस्थान वासियों पर बनी रहे, ऐसी इस दीपावली पर मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं सभी को प्रेषित करता हूँ। आइलैंड जाऊंगा भाई कदे फरवरी शायरी में फरवरी में जाऊंगा पक्का में मन करना। ठीक है। हाँ विमल जी गजेंद्र अरे नरेश जी सरकार प्रणाम प्रणाम भाई साहब बहुत सारी बधाई। BJP leader Shehzad Poonwala criticized the situation at Yamuna Ghat, where toxic foam was seen floating on the river the day after Diwali. He attributed the pollution to the alleged corruption of Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, claiming that they are now using chemical defoamers ahead of Chhath Puja. Poonwala accused Kejriwal of turning Delhi into a gas chamber, highlighting the need for masks due to poor air quality.
He also pointed out that while the AAP blames Uttar Pradesh for pollution, they overlook stubble burning in Punjab and have failed to address the root causes of pollution in Delhi. यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते हैं, हरियाणा को दोष देते हैं। और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है, तो आप सांस लेंगे तो फेफड़ा खराब, अगर आप पानी पिएंगे तो पेट खराब। दिल्ली में कल जो दिवाली वाले दिन पटाखे बैन थे, देखिए दिवाली के पटाखे एक दिन की घटना है, पर लगातार AQI दिल्ली में 350 पार था। वो 10 दिन 15 दिन से चल रहा था। उसके पीछे कारण क्या? दिवाली के तो पटाखे कल बजे। और केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर, तो पटाखे फोड़ते, तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं। और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। ये पटाखे जो है ये केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पटाखों को दोष देते हैं, यूपी हरियाणा को दोष देते हैं। जो अंदरूनी कारण है दिल्ली के प्रदूषण का, उसके ऊपर 10 साल में काम नहीं किया। थैंक यू सर। Pandey addressed the controversy surrounding Jharkhand CM Hemant Soren's age, stating that their party has nothing to hide and everything is transparent with verified documents available. He suggested that the BJP is panicking due to a looming defeat and urged them to maintain their composure and political spirit, noting that victories and defeats are part of politics. Pandey emphasized that the JMM is committed to transparency and does not conceal information. बीजेपी का कहना है कि एफिडेविट जो उन्होंने लगाया उसमें गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी उम्र को लेकर है, दूसरी गड़बड़ी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ पाया गया है। देखिए हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्यज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और भी कई एक मंत्री इनके थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। एक सांसद भी हैं झारखंड के जो मात्र 10 साल की उम्र में वो मैट्रिक भी पास कर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको शोभा देती हैं, वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं। हम वैसी चीजों को न प्रश्रय देते हैं न हम वैसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन
On Chhattisgarh State Foundation Day, Deputy CM Arun Sawa extended his congratulations to the people of Chhattisgarh, highlighting the vision of the BJP and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in the creation of this separate state. He noted that over the past 15 years, the government has been dedicated to advancing Chhattisgarh in alignment with this vision and is committed to continuing this progress. Sawa called for collective efforts to transform Chhattisgarh into a developed state. की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया और फिर से हमारी सरकार बनी है। हम उसी दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के, छत्तीसगढ़ के आम जनता के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, छत्तीसगढ़ के युवा आत्मनिर्भर बने, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें, हमारी महतारी आत्मनिर्भर बनकर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो यह राज्य स्थापना दिवस कि मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करें। अर्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री को सांसद के सभी विश्वास लेना होगा और यह असंभव होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ यही तकलीफ है। जो भी काम राष्ट्र हित का होगा, देशवासियों के हित में होगा, उन कामों का हमेशा ये विरोध करने वाले हैं। अब ये इनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। आज पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन जब भी आएगा, संविधान और कानून के अनुसार आएगा। खड़गे जी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि काशी मथुरा को अयोध्या की तरह जल चमकाना चाहिए। देखिए, ये हमारी विरासतें हैं। भगवान रामलला का जन्म स्थान अयोध्या, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। वृंदावन मथुरा भगवान कृष्ण की कर्मस्थली, जन्मस्थली और हमारे देश की विरासत है। और जो अपने विरासत को भूल जाता है, उसकी अस्तित्व तो समाप्त हो जाती है। तो हम तो इस विजन से काम कर रहे हैं कि विरासत भी और विकास भी, तो विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हिंदुओं के हितों को रक्षा का संकल्प लिया है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की बात की है। अच्छा है, यदि वो ये कर पाते हैं अपने कार्यों से तो अच्छी बात है। राज्य की स्थापना दिवस की बहुत Congress MP Gaurav Gogoi expressed confidence in the upcoming Jharkhand Assembly elections, stating that the JMM and Congress are poised to form a majority government. He dismissed the BJP's claims, asserting that the public is highly satisfied within the work done by both the JMM and Congress, and he remains hopeful that their coalition will achieve a full majority. लोगों से जो सूचना आ रही है, वहां पर यही पता चल रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। चाहे जो भी भाजपा के नेता वहां पे जाए, प्रचार करे, दुष्प्रचार करे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की काम को देखकर लोग काफी संतुष्ट हैं और इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। देखिए, असम में लोगों से जो सूचना आ रही है, वहां पर यही पता चल रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है। चाहे
जो भी भाजपा के नेता वहां पे जाए, प्रचार करे, दुष्प्रचार करे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की काम को देखकर लोग काफी संतुष्ट हैं और इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। Meeting MNS Chief Raj Thackeray, Shiv Sena leader Shena NC stated that she has family ties with him and extended her best wishes for Diwali. She expressed hope that the public from the Mumbai Devi constituency would support her in the upcoming elections. ये तो अमित मांगे हमें जैसे हेलो हेलो समीक्षा रेशमध्ये फायनान्सची बाईट देते मॅडम अरविंद सावंत यांनी का माल नहीं चलेगा ये अरविंद सावंत और उनके पार्टी की मनस्थिति स्पष्ट होती है, उनकी सोच जो एक महिला को माल बुला सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ क्या मुंबा देवी की हर एक महिला माल है? और ये कहना उस व्यक्ति को जिनके लिए हमने प्रचार किया 2024 में, 2019 में, 2014 में, उन्होंने मोदी जी का नाम लगा के वो जीत के आए हैं, उनकी शुरुआत वहां से हुई है और आज 2024 के इलेक्शन में वो मुझे माल बुलाते हैं, उनकी मनस्थिति दिखाई देती है। और मैं पूछना चाहती हूँ उनके नेतृत्व को क्यों चुप है? शरद पवार जी बोलिए, उद्धव ठाकरे जी बोलिए, संजय राउत जी बोलिए, नाना पटोले जी बोलिए कि जो एक महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं और माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मनस्थिति पता चलती है। और तुम्ही कायदेशीर काही या संदर्भात मॅडम मराठी बोला ना, भूख घाल दिया। मैं कायदे से उठाऊं या ना उठाऊं, वोटर और हर एक महिला उठाएगी, क्योंकि जो आप महिला को सिर्फ माल के रूप में देखते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, अपने बलबूते 20 साल राजनीति में काम करके आई है और आप माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति और आपकी मनस्थिति सबको पता चलता है। महाराष्ट्र की महिला उबाटा को कभी नहीं वोट करेगी। ये जो स्टेटमेंट आया है सबके सामने है। मला वाटते की महिलांचा सन्मान केलं तर तुमचा आदर आहे, तुम्ही महिलांना माल बोलवलं तर तुमचे जे हाल होणार तुम्ही 20 तारीखला बघा। MP Chief Minister Mohan Yadav remarked the November 1 marks MP Foundation Day, a significant occasion that reflects the state's glorious journey. He emphasized that Madhya Pradesh has carved out its own identity and is witnessing growth in various sectors, including industry, agriculture and IT. Yadav called for a collective resolution to make Madhya Pradesh the best state in the country. Regarding Govardhan Puja, he noted that since the formation of the government, the festival has been celebrated on a larger scale. He pledged to continue the state's commitment to cow welfare and expressed the goal of making Madhya Pradesh the leading state in milk production. यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली क्षण है जिसके आधार पर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सभी प्रकार से युवाओं के लिए भी खासकर शिक्षा में उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, आईटी से लेकर के इंडस्ट्री तक, लघु उद्योग से लेकर कुटीर उद्योग तक, खेती किसानी से लेकर हार्टिकल्चर तक, सब क्षेत्र में संभावना बन रही है। सरकार सभी को प्रोत्साहन दे रही है। नई शिक्षा नीति को लाकर शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण स्थिति बनाते हुए कई सारे सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन आज तो दीपावली के तुरंत बाद आज का दिन और आनंद में है, जब दीपोत्सव मन रहा तो राज्योत्सव भी मन रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को पुनः बधाई। हम सब संकल्प करें, आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक व्यवस्था डबल करेगा और सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए देश में नंबर 1 का राज्य बनेगा। पुनः एक बार आप सबको बधाई। हमारे लिए तीज त्योहार पर्व का आनंद ही अलग हो, खास करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने सरकार के साथ समाज में चलने वाले सभी तीज त्योहार अपने स्तर पर आनंद के साथ मनाने का निर्णय किया। इसलिए दिवाली के अवसर पर दिवाली के तुरंत बाद मनने वाली गोवर्धन पूजा, जिसमें हम हमारा लाखों साल पुराना पशु प्रेम भी और भगवान कृष्ण की वो जो मथुरा में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाली घटना, दोनों को जोड़ करके गोवर्धन पूजा का जो हमारा रिवाज है, संस्कृति है, उसको धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर होने वाली पूजाओं में मैं स्वयं शामिल होऊंगा और हमारे अब सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि सरपंच और पंच भी अपने अपने स्तर पर शामिल होंगे। इस उत्सव पे होने वाले आनंद के साथ हम अपना गो प्रेम भी कायम रखेंगे और खासकर दूध उत्पादन में प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। BJP MP Praveen Khandelwal criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and AP leaders for allegedly misleading the public on the issue of air pollution. He accused them of using the ban on firecrackers during Hindu festivals as a scapegoat to suggest that firecrackers are the primary cause of Delhi's air pollution. Khandelwal stated that this assertion is completely incorrect and pointed out that the AP government has not taken any substantial measures to reduce pollution in Delhi over the past decade. आम आदमी पार्टी के लोग एक भ्रम का वातावरण फैलाना चाहते हैं। प्रदूषण की आड़ में वो हमारे हिंदू त्योहारों पर पटाखों को बैन लगा करके और अब ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पटाखों के कारण से हुआ। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसे वो कौन से कदम उठाए जिससे प्रदूषण को रोका जा सके? क्या केवल पटाखों से ही प्रदूषण होता है? क्या जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण से जो धूल उड़ते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या पंजाब में पराली जलती है उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या दिल्ली में और बहुत सारे फैक्टर है उससे प्रदूषण नहीं होता? केजरीवाल जी ने कभी भी प्रदूषण के कारणों को जानने की चेष्टा नहीं की है और प्रदूषण से कैसे दिल्ली को बचाया जा सकता है इस पर कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। हर साल जब सर्दियां आती हैं और त्योहार आते हैं तो पटाखे बैन की बात कही जाती है। इसमें यह भी कहना बहुत जरूरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले पटाखों पे बैन लगाने की बात कही थी, लेकिन पटाखों के एवज में ग्रीन क्रैकर्स डेवलप हुए, तो क्या दिल्ली में ब्लैंकेट बैन लगा? That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.